Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Let's start with the second video from the lesson number 3, Deep Water, written by William Douglas. As you all are aware now that this is the lesson about in which William Douglas is telling something about his fear of water when he was just a child of 4, accompanied with his father to the California beach and faced and experienced such a fear of water that stayed with him for a long time. It has been well said that only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. Again, it is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not that they are difficult. These are wonderful lines and quote by Lucius Seneca. Yesterday I dared to struggle, today I dare to win. Yes, the Dublin has said something beautiful. And again here, Andre said, man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. And this is very much appropriate in regard of William or Douglas when he was just a child of 4. I would say he was only 3 or 4 years old when he accompanied with his father to the beach in California, and they stood together in the surf of that beach. He hung on to his father, yet the waves knocked him down and swept over him. William Douglas was under the water. His breath has gone. He was frightened. But father was laughing at this. But there was terror in his heart at the overpowering force of the waves which stayed him for a long, long time. Because William Douglas was very much determined to learn swimming. So when he was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim, and YMCA pool offered exactly the opportunity to him. He bought water wings and started paddling with his new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them, right? He said that I was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened with him. A abusive boy came and picked him up and tossed into the deep part of the pool. He landed in a sitting position, swallowed water, and bent at once to the bottom. He was very much frightened, but not yet frightened out of his wit. When he was going down toward the bottom of the pool, he made strategy that how he would come out of this pool. He made the plan. As soon as my feet would touch at the bottom of the pool, I will jump up like a spring. I'll be there at the surface of the water, and with paddling with the help of strokes, I'll be at the edge of the pool. When his feet touched at the bottom of the pool, he made the same effort and same strategy he adopted at least twice. But all his 3 efforts was futile. He couldn't come up at the surface of the water. William Douglas made 3 efforts to come up at the surface of the water and at the edge of the pool with the strategy that he had planned in his mind during encounter with the water in the pool. When he had the encounter with the water in the pool, he felt with stark terror which has seized him completely. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. He was shaking underwater. He was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in his throat were frozen. Only his heart and the pounding in his head said that he was still alive. Yes, dear student, stay with me till the end of this video to know more about William Douglas, his daring, his action, his determinations to learn swimming and to overcome the fear of water. Alright, so come with me for the translation of this lesson. See, and then
In the midst of the terror came a touch of reason or fear. भय के मध्य डर के बीच में ही तर्क की एक झलक आई. He said, I must remember to jump when I hit the bottom. मुझे क्या याद रखना था कि जैसे ही मैं पूल से टकराऊंगा तो मुझे ऊपर की ओर छलांग लगानी है, कूदना है, जंप करना है. राइट. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. राइट. इन द मीन टाइम, उसी बीच क्या हुआ कि मैंने अपने पांव के नीचे टाइल्स को महसूस किया. माई टोज रीच आउट, कि मेरी जो टोज थी, फिंगर्स थी, राइट, रीच्ड आउट एज, कि जैसे ही उसको टच करती है ऐसा लग रहा था मानो इफ टू ग्रैब देम, कि उसे वो जकड़ना चाहती है, पकड़ना चाहते. आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड. सो मेरे पास जो कुछ था, जितनी एनर्जी थी, पूरी फोर्स के साथ जंप किया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा था. वाटर वाज अराउंड मी, कि मेरे इर्द गिर्द अभी भी पानी था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, कि मैं किसी रस्सी, सीढ़ी, वाटर विंग्स को ढूंढ रहा था. नथिंग बट वाटर, कि मुझे सिर्फ मेरी पकड़ में सिर्फ पानी ही पानी आया. ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी ने मुझे पकड़ लिया था. स्टार्क टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great charge of electricity. Right, the great charge of electricity. He said that stark terror, कड़े डर ने मुझे even इससे भी अधिक like इलेक्ट्रिसिटी की आवेग की भांति अंदर तक जकड़ दिया था, गहराई तक जकड़ दिया था. I shook and trembled with fright. डर के मारे में क्या था, शोक कर रहा था, ट्रैम्बल कर रहा था, हिलने लगा था, कांपने लगा था. माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी बाहें और लेग्स नहीं चल रही थी. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया, कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर, मैंने मदर को पुकारने की कोशिश की. नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ. एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली, राइट, बड़ा आश्चर्य की बात हुई. देयर वाज लाइट, कि मुझे रोशनी दिखाई दी. I was coming out of the awful yellow water. मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था. At least my eyes were, कि कम से कम मेरी आंखें बाहर थी. My nose was almost out too. और मेरा नाक भी लगभग almost बाहर आ गया था. Then I started down a third time. फिर मैं तीसरी बार, that was my third effort to come up. Right? I started down a third time. I sucked for air. I was trying to get air, कि मुझे सांस लेनी थी. राइट, सांस लेने के लिए मैंने सक किया, अंदर लेने की कोशिश की. एंड गॉट वाटर. राइट, इन प्लेस ऑफ एयर आई गॉट वाटर, कि मेरे नाक में पानी ही घुसा. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो वो पीली रोशनी थी, जो पीलापन था, वो समाप्त हो गया था. Then all effort ceased. फिर सारे प्रयास खत्म हो गए. I relaxed, मैं ढीला पड़ गया. Even my legs felt lame, यहाँ तक कि मेरी टांगे भी ढीली हो गई. And the blackness, right? And the blackness swept over my brain. और मेरी दिमाग पर काली छा गई, कालापन छा गया. It wiped out fear. इसने डर को दूर कर दिया. It wiped out terror. इसने आतंक को दूर कर दिया था. There was no more panic. अब वहां किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई दर्द नहीं थी. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वहां सब कुछ शांत था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी. दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छा था. टू बी ड्राउजी, ऊँघना, टू गो टू स्लीप, राइट, सोने वाली स्थिति. नो नीड टू जंप करने की जरूरत नहीं. टू टायर टू जंप, राइट, जंप करने के लिए वो थक चुका था. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि बड़े प्यार से ले जाते हुए अच्छा लग रहा था. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और आकाश में तैरते हुए बहुत अच्छा लग रहा था. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कि मेरे इर्द गिर्द इतनी कोमल बाहें, राइट, एंड टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, मानो मेरी माँ की मुलायम और कोमल बाहों में मुझे ले जाते हुए सब कुछ अच्छा लग रहा था. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए. एंड दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम विद हिम व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट थ्रोन इन द पूल. आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियंस एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. मैं विस्मृतियों, राइट, ओब्लिवियंस की दिशा में चला गया था, और मेरा जो जीवन रूपी पर्दा है, दैट वॉज लाइकली टू फेल, राइट, फेल हो गया था, गिर पड़ा था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. अगली बात जो मुझे याद है, मैं पूल के साथ उल्टी करते हुए स्टमक, पेट के बल पड़ा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग,
वो लड़का जिसने मुझे पूल में फेंका था कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, कि बच्चा लगभग मर गया था, मरने वाला था। वी ऑल राइट नाउ, कि अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि आओ इसे लॉकर रूम में ले चले। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद आई वॉकड होम, मैं घर की ओर चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमजोर और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था मैं हिलता रहा और चीखता रहा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे हार्ट में, मेरे दिल में यह भय बार बार आता रहा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा प्रयास मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी बबली इन द नीज, और मेरे घुटनों में डावाडोल पैदा कर देता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द पैदा कर लेता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी पूल में वापस नहीं गया। आई फियर वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, कि जब भी पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, मैंने इससे बचने की कोशिश की। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ वर्षों के बाद जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं इसमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, परंतु जब भी मैंने ऐसा किया, पानी के अंदर जाने की कोशिश की, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. See, whenever I tried to get into the water, whether फिर चाहे मैं टाइटन बम्पिंग नदी को पैदल पार कर रहा था या गोट चट्टानों की गर्म झीलों में नहा रहा था, तो जिस स्केयर फियर ने, डर ने मुझे पूल में जकड़ लिया था, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो पूरी तरह से मुझे जकड़ लेता था। राइट, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी जो टांगे है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती थी, निर्जीव हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, राइट, कपकपी पैदा कर देने वाला डर मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, यह डर मेरे साथ चलता रहा। In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, was fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metalius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. कैनोइज में या डोंगियों में, मेन की झीलों पर साल्मन मछलियां पकड़ते हुए, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ते हुए, और मेन में डेस्चोर्स और मेडोलियस के द्वीपों पर ट्राउट पकड़ते हुए, कोलंबिया में सैल्मन पकड़ते हुए, कास्केड्स में बम्पिंग झील पर, वेयर एवर, जहां कहीं भी गया, पानी का वो डर मेरा पीछा करता रहा। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. इसने मेरी मछलियां पकड़ने की इंजॉय को, राइट, और ट्रिप्स को, यात्राओं को, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग के आनंद से मुझे वंचित किया, बोटिंग से वंचित किया, और स्विमिंग के एंजॉय से, आनंद से वंचित किया। That's it, dear student. That is your second part of this lesson. See you soon in the next one. Till then, stay safe, stay healthy. Don't forget to subscribe my channel. Let's note down some difficult words